اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ڈی کنسٹرکشن۔ یہ ایک ورڈ ہے جو کہ ژیک ڈیریڈا نے اپنی فلسفی میں پیش کیا، اور پرٹیکولرلی اٹس ریلیٹڈ ود پوسٹ اسٹرکچرلزم، اور اسٹرکچرلزم کے بعد جو ہے آنے والا پوسٹ اسٹرکچرلزم، اس میں کئی چیزوں کو جو ہے وہ مزید ایلیبریٹ کیا گیا، اور کئی چیزوں کو جو ہے وہ کویسچن کیا گیا اسٹرکچرلزم کی۔ وہ میں سارا بریفلی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، مگر یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے بہت ہی کمپلیکس تھیوری ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ جتنا میں ایزیلی آپ لوگوں کو بتا سکتا ہوں میں اتنا ایزیلی آپ کو بتا دوں، مگر یہ ایک لیکچر میں نہیں آئے گا، بیکاز آئی ہیو این انٹینشن ٹو ڈسکس اٹ ان ڈیٹیل، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے جو ہے ڈیکنسٹرکشن سمجھ آ جائے۔ بہرحال یہ فلاسفی ہے، اور فلاسفیکل کانسیپٹس میں بھی بہت ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے، تو اس کو آپ لوگوں کے غور سے سنیں گے، پوائنٹس لیتے رہیں، بار بار سنتے رہیں، تو شاید آپ لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اور اس کی جو ہے وہ بینیفٹ آپ لوگوں کو مل جائے۔ مگر یہ ہے کہ اگر نہیں آپ کو کوئی چیز پوائنٹ سمجھ آ رہی ہے تو آپ دوبارہ سنیں تو ہو سکتا ہے کہ پھر آپ کو وہ پوائنٹ جو ہے کلیئر ہو جائیں۔ تو I'll try my best کہ میں جتنا اس کو ایزی بنا سکتا ہوں میں بنا دوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ ڈیکنسٹرکشن جو ہے یہ ٹرم ژیک ڈیریڈا نے اپنے ورکس میں لکھی، اور اس میں بہت سارے لوگوں نے مختلف جو ہے تھیریز اس کے بارے میں پیش کی ہیں۔ ژیک ڈیریڈا کیا کہتا ہے وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے، ساتھ ہی ساتھ جو باقی کرٹکس کہتے ہیں، جو باقی رائٹرز جو ہیں اس کے بارے میں جو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ کیا چیز کہتے ہیں، کیونکہ فرینچ فلاسفر ہے تو اس نے مینلی فرانس میں جو ہے وہ فرینچ لینگویج میں آبویسلی لکھی ہوگی، تو وہ جب ٹرانسلیٹڈ ہوتی ہے، ٹرانسلیٹڈ ورژنز میں آتی ہے انگلینڈ یا انگلش لینگویج میں، جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو اس کو ظاہر ہے آبویسلی اٹ از باؤنڈ ٹو چینج، اٹ ول ناٹ بی دا سیم لینگویج جو کہ پہلے ڈیریڈا نے لکھی تھی، تو اس میں کئی قسم کے میننگس چینج ہو جائیں گے۔ اس پہ ٹرانسلیشن اسٹڈیز یا ٹرانسلیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں اپنے پریویس لیکچرز میں ڈسکس کر چکا ہوں، تو آپ ان کو جا کے سن سکتے ہیں، جو تھیریز کے اوپر فارملزم، اسٹرکچرزم، پوسٹ اسٹرکچرزم اور سائیکو انالیسس میں جو میں نے لیکچرز دیے تھے ٹرانسلیشن اسٹڈیز پہ میں نے تھوڑی سی بات کی تھی، تو آپ وہاں جا کے ان کو دوبارہ سن سکتے ہیں کہ ٹرانسلیشن سے کس طرح میننگس چینج ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس میں ڈیریڈا کے جو پوائنٹ آف ویو تھا، سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پھر اسٹرکچرلزم کے پوائنٹ آف ویو سے، کہ اسٹرکچرلزم جو ہے اٹ سیلف واٹ از دیٹ۔ یہ مختلف جو ہے کتابوں کو میں نے کنسلٹ کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو جو میں ایزی کر سکوں، جتنا ایزی کر لوں اس کو آپ لوگوں کے لیے، تو آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہیں ہو بعد میں سمجھنے میں اس کو۔ تو یہاں پہ مختلف جو ہے ڈکشنری ٹرم سے میں بات سٹارٹ کر کے اس کے بعد پھر میں اس کو ایلیبریٹ کروں گا، پھر میں کرٹکس کے آرگیومنٹس کی طرف جاؤں گا اور ان کو میں ایلیبریٹ کروں گا، تو یہ پارٹس میں بنے گا، یہ ایک پارٹ میں یا 1 گھنٹے کا لیکچر نہیں ہوگا، اور مائنڈیڈ کہ یہ صرف سلیکٹڈ فیو لوگوں کے لیے، یہ ہر کسی کے لیے یہ لیکچر نہیں ہے، ہر کوئی اس کو نہ سمجھ سکتا ہے اور یہ نہ ہی اس کو جو ہے آگے جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں آپ لوگ۔ تو یہ صرف ان لوگوں کے لیے جو واقعی پڑھنے والے لوگ ہیں یا جو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں چیزوں کو، یہ ان لوگوں کے لیے ہے، یہ فار آرڈنری پیپل یہ لیکچرز نہیں ہیں، تو آپ لوگ اس بات کا بھی دھیان رکھیں گے۔ Structuralism. Structuralism examines aspects of human society, including language, literature, and social institutions, as integrated structures or systems in which the parts have no real existence on their own. اب اسٹرکچرزم کی ڈیفینیشن تو آپ پہلے جانتے ہوں گے، موسٹ پرابلی آپ پڑھ بھی چکے ہیں اسٹرکچرزم کو، آپ دوبارہ جا کے میرا لیکچر سن رہے ہیں تو وہاں بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ تو اسٹرکچرز آف دا سوسائٹی، اسٹرکچرز ود ان دا ٹیکسٹ، لینگویج اٹ سیلف ہیز بین میڈ آف اسٹرکچرز، لینگویج جو ہے اس کے اپنے اسٹرکچرز ہیں، گرامر ہے اس میں فنیمز ہیں، فنیمز کا اپنا اسٹرکچر ہے، ڈفرینٹ ساؤنڈز ہیں، کمبینیشن آف ساؤنڈز جو ہیں وہ ورڈز بناتی ہیں، اور ایک فنیم دوسرے فنیم سے ڈفرینٹ ہے تو اس کی وجہ سے بھی میننگس چینج ہو جاتے ہیں۔ آپ بیٹ کی جگہ، اگر بیٹ کی جگہ آپ جو ہے وہ لگا دیں تو کیٹ بن جائے گا، جس کا میننگ بالکل ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو فنیمز کا وہ کہتا ہے اکارڈنگ ٹو ڈیریڈا اینڈ ادر فلاسفرز، وہ کہتے ہیں کہ دے ڈو ناٹ ہیو اینی انہیرنٹ میننگز ان دیئر اون
बॉडीज़, उनके अपने अंदर जो है जो उनकी साउंड्स हैं उनके अंदर मीनिंग्स मौजूद नहीं होते हैं, मगर उनकी कम्बिनेशन में और कंट्रास्ट जो अदर फिनीम से होता है उसकी वजह से उसके मीनिंग्स जो हैं वो आप डिफ़ाइन करते हैं. They do not have real existence on their own, but only derive meaning and significance from their places within the system. System जो होता है वो सोसाइटी का भी हो सकता है. एक टेक्स्ट, जब आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं, कोई बात लिख रहे हैं, तो एक ख़ास स्ट्रक्चर उस टेक्स्ट के अंदर आप पोर्ट्रे करेंगे, चाहे वो बिल्डिंग्स का स्ट्रक्चर हो, चाहे वो ह्यूमन इमोशंस का स्ट्रक्चर हो, क्योंकि इसमें जो है एक क्रिटिक ने ये भी बात की, उसने कहा कि फीलिंग्स देमसेल्व्स हैव देयर ओन थॉट्स, हैव देयर ओन काइंड ऑफ आइडेंटिटी. फीलिंग्स की अपनी आइडेंटिटी होती है, उनकी अपनी थिंकिंग होती है फीलिंग्स की. ये भी एक जो है क्रिटिक ने डिस्कस किया. अगर आप चाहेंगे तो मैं उसका नाम आपको बता दूंगा. आई ट्राई टू टेल यू द नेम ऑफ दैट क्रिटिक एज वेल. तो स्ट्रक्चर, हर चीज़ का स्ट्रक्चर, जो भी स्ट्रक्चर चल रहा है, मसलन बाज़ चीज़ों का स्ट्रक्चर जो है वो यूनिवर्सल है. जिस तरह सन जो है उसका स्ट्रक्चर ये है कि वो हर जगह पे सिंबल ऑफ होप है, सिंबल ऑफ लाइट है, और लाइट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद समथिंग लाइक जो है कह लें आपके हर अच्छी चीज़ से लाइट को कंपैरिजन में लेके आया जाता है, बिकॉज कि उसका स्ट्रक्चर जो है बहुत पहले से चल रहा है. जिस तरह बाइबल के अंदर जो है आपको पता लगता है कि लाइट का कॉन्सेप्ट जो है जेनेसिस जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि गॉड सॉ दैट द लाइट वाज गुड एंड ही कॉल्ड लाइट द डे एंड डार्कनेस ही कॉल्ड नाइट. इसी तरह से रोशनी का कॉन्सेप्ट जो है वो नूर से रिलेटेड है, तो वो भी कहीं ना कहीं गॉड और गॉड की जो टीचिंग्स है उससे रिलेटेड है, रोशनी का कॉन्सेप्ट या लाइट का कॉन्सेप्ट. तो वो सारा का सारा जो है आप देखते हैं कि जो जो लाइट की चीज़ें हैं दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड सिंबल्स. तो ये सोसाइटी के अंदर पहले से चले आ रहे हैं, आपने इनको डिफ़ाइन नहीं किया, यू हैव जस्ट टेकन देम एज दे आर. आपने उन सारे सिंबल्स को जो आपको बताए गए वर्ड्स और उनके मीनिंग्स आपने एज दे आर, आपने सबको जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है विदाउट चैलेंजिंग दैम कि उनका कोई और मीनिंग भी हो सकता है. और यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि गलती करते हैं आप. और आप ये देखते हैं टेक्स्ट के अंदर कि वो स्ट्रक्चर जो है वो टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से जो जिस सोसाइटी की डिपिक्शन की जा रही है उसका स्ट्रक्चर उस टेक्स्ट के स्ट्रक्चर से कितना डिफरेंट है. उनकी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर भी हो सकता है, या इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेस के जो सिंटैक्स है उसका, या जो उनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, या इवन जैसा अब शेक्सपियर का जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, अब क्या वो उसी ज़माने वैसा ही बोला जा रहा था या शेक्सपियर ने थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया था, जिस तरह पोइट्स चेंज कर देते हैं लैंग्वेज को. तो ये दीज माइट बी द क्वेश्चंस. तो उस स्ट्रक्चर को भी आप एक्सप्लोर करते हैं. फिर ये होता है कि मीनिंग्स जो हैं, क्या राइटर खुद अपने मीनिंग समझ रहा है, क्या उनको सही तरह से अंडरस्टैंड करके वो लिख पा रहा है या वो नहीं लिख पा रहा है. जिस तरह वर्ड्सवर्थ की राइटिंग्स में जब आप देखते हैं तो वर्ड्सवर्थ कहता है कि एक जगह पे वो कहता है कि for all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. उसका preface to lyrical ballads which was published in as far as I remember 1802. कई जगहों पे 1800 डेट आती है, कई जगहों पे 1802 डेट आती है, तो मुख्तलिफ जगहों पे मैंने मुख्तलिफ पढ़ा है. तो बहरहाल 1802 कर लें. तो 1798 में जो उसने लिरिकल बैलेड्स लिखे थे, और उसके बाद जो है उसने ये बात कही कि फॉर ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. अब स्टार्टिंग में वो ये बात कर देता है, मगर जब आप उसको आगे जाके पढ़ते हैं इन द लेटर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, द सेम टेक्स्ट, तो वो कहता है एज आई हैव सेड दैट पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. अब यहाँ पे एक आप जब जाके टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो दो कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं वहाँ पे. वन इज़ फॉर ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. तो ऑल गुड पोइट्री, तमाम गुड पोइट्री जो है, तमाम अच्छी पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है, एकदम से ओवरफ्लो आपके अंदर से आता है पावरफुल फीलिंग्स का. आपकी जो फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स और इमोशंस. अगर अब क्वेश्चन यहाँ पे अगर आप डिकन्स्ट्रक्ट करें उसको या आप क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दें, तो आप पहले क्वेश्चन ये करेंगे कि अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ जो पोइट्री स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं है, क्या वो गुड पोइट्री नहीं है? क्वेश्चन. क्योंकि वर्ड्सवर्थ ये कह रहा है कि फॉर ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. तो अगर वो पावरफुल फीलिंग की स्पॉन्टेनिटी उसके अंदर नहीं आ रही है, या वो सोच के लिख रहा है एक राइटर, और वो एकदम से अब्रप्टली नहीं लिख रहा है, सारा उसके माइंड में आता जाए और वो लिखता जाए, वो सोच के, जिस तरह जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट है, तो ये हैज़ रेड अ लॉट. आप पैराडाइज लॉस्ट पे मैं लेक्चर सुन सकते हैं, तो आपको पता लगेगा. पहली बुक को जो है मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है,
और टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो वहाँ मैंने साथ साथ उसकी डिटेल्स भी बताई हुई हैं, तो आप वो सुनेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो अगर वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं होता है, से फॉर एग्जांपल, तो अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ विल इट नॉट बी गुड पोएट्री? क्वेश्चन। दूसरा कि फॉर ऑल गुड पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। अब यहाँ पे वो गुड पोएट्री की बात कर रहा है, जबकि बाद में लेटर पार्ट में वो जाके कहता है कि एज आई हैव सेड that poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings। वहाँ पे good का word उसने all और good का word उसने माइनस कर दिए, डिलीट कर दिए वहाँ से। तो अब एक राइटर जो रीडर है वो ये बात क्वेश्चन कर सकता है कि he has not said that। उसने और बात की थी, उसने गुड पोइट्री की बात की थी, उसने ऑल पोइट्री की बात नहीं की थी। फॉर पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, उसने ये बात नहीं की थी। दूसरी चीज़, ये मैं अपने प्रीवियस लिरिकल बैलेट्स के जो लेक्चर्स हैं उसमें बता चुका हूँ ये भी डिटेल। दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो ये है कि ऑल गुड पोइट्री, दूसरी जगह पे आ रहा है सेड, एज आई हैव सेड, ही इज़ नॉट सेड इट। सेड टू हुम, किससे बात की है, किसको बताया है? अब यहाँ पे जो वर्ड आना चाहिए गया था वो क्या आना चाहिए था, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन, जैसा कि मैंने पहले लिखा है। ही इज़ नॉट सेड इट, ही इज़ रिटन इट। अब अगर इसको आप कोई बंदा क्रिटिक जो है मेरे से डिसएग्री करना चाहेगा तो वो मेरे आर्ग्यूमेंट्स को पकड़ेगा और उस पर बात करेगा और वो कहेगा कि वेल टेरी गिल्टन की किताब के अंदर लिखा हुआ है, साइकोएनालिटिकल क्रिटिसिज्म के अंदर लिखा हुआ है, साइकोएनालिसिस में, कि जो है आप टेक्स्ट को जब टेक्स्ट जो है जो आपके सामने जो टेक्स्ट मौजूद होती है, दैट इज स्पीच रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। तो अगर कोई बंदा मेरे से डिसएग्री करना चाहेगा तो वो फिर मेरे वर्ड्स के ऊपर कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, मेरे वर्ड्स को पकड़ेगा और उनके ऊपर फिर उनकी मीनिंग्स के अंदर जाएगा, उनकी डिटेल्स में जाएगा और वहाँ से कॉन्ट्रडिक्शंस लेकर आएगा। तो ये मेरे क्रिटिसिज्म के ऊपर डीकंस्ट्रक्शन या मेरे क्रिटिसिज्म के ऊपर जो है वो क्रिटिसिज्म हो गया या डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो गया काइंड ऑफ। तो डीकंस्ट्रक्शन का मतलब जो है वो आप पढ़ेंगे कि इट्स नॉट समथिंग डिस्ट्रक्शन के सेंस में नहीं है। Deconstruction is basically it deals with the critical analysis of a piece of writing. It might be the kind of any novel, short story, anything, drama, poetry, or criticism itself, or philosophy, or any piece of writing. किसी भी चीज़ पे, किसी भी टेक्स्ट पे, किसी भी piece of writing पे, किसी भी word पे आप ये criticism apply कर सकते हैं। तो hope you understand कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमें सोसाइटी नहीं दी हैं पहले। अब यहाँ पे बात करता है फॉर एग्जांपल द बेसिक यूनिट ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज, द phoneme is seen to derive its meaning not from any inherent qualities in itself but because of its difference from other sounds। वो कहते हैं दूसरी साउंड्स के साथ जो उसका डिफरेंस होता है उसकी वजह से उसका मीनिंग आता है। मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ बैट एंड ये फोनेटिक सिंबल्स पे जो लेक्चर्स हैं आप जाकर सुन सकते हैं, तो फोनीम्स के आपको पूरी डिटेल्स पता लग जाएंगी, वहाँ पे फोनेटिक सिंबल्स के मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो की जगह अगर आप लगा देते हैं या लगा देते हैं तो हैट, बैट, कैट, तो छोटे छोटे जो साउंड्स के जो यूनिट्स हैं उनकी वजह से मीनिंग्स पूरा का पूरा वर्ड का चेंज हो रहा है। तो मीनिंग्स किसने दिए, वर्ड्स को उनके मीनिंग्स किसने दिए, चीज़ों को उनके नेम्स किसने दिए, क्वेश्चंस 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 एंड देयर आर नो आंसर्स। अब यहाँ पे पहले हम स्ट्रक्चरलिज्म को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म को समझे बगैर आपको पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म जो है वो समझ नहीं आएगा या डिकंस्ट्रक्शन समझ नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं, या ब्रीफली तो नहीं, थोड़ा सा डिटेल में मैं चाहूँगा कि मैं इसको डिस्क्राइब कर दूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो समझने में। स्ट्रक्चरलिस्ट critics often explore individual works of literature by analyzing them in terms of linguistic concepts। तो अब सबसे पहले जो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स क्या करते हैं कि वो लिंग्विस्टिक्स या कुछ ग्रुप है जो, या कोई ग्रुप होगा लिंग्विस्टिक्स का, लिंग्विस्ट्स का, जो कि लिंग्विस्टिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में या उसके वर्ड्स, मीनिंग्स, उसके सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर या कुछ भी उसको डिस्कस करता है। वर्ड्स का स्ट्रक्चर क्या है उसको डिस्कस करेगा, लाइक द phoneme और morpheme or
as if the structure of a word resembled the syntax of a sentence. अब दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरे critics क्या कह रहे हैं, others concentrate on examining the conventions and expectations which a knowledgeable reader understands implicitly when reading the work, literary competence, with the ultimate aim of building up a kind of grammar or ground plan of the whole system of literature and its place in society. अभी कॉम्प्लेक्स थेरीज हैं, तो इनको जब तक आप थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं करेंगे, तवज्जो नहीं देंगे, आपको समझ नहीं आएंगी ये चीज़ें. तो कहता है कुछ लोग जो है कंसंट्रेट करते हैं, कुछ लोग गौर फिक्र करते हैं इस चीज़ पे, ऑन एग्जामिनिंग द कन्वेंशंस एंड एक्सपेक्टेशंस विच अ नॉलेजेबल रीडर अंडरस्टैंड्स. तो कहता है कि कुछ लोग जो हैं वो कन्वेंशंस के जो पहले से बिलीव्स चले आ रहे हैं, जो पहले से जो ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं, चीज़ें चली आ रही हैं, वर्ड्स और उनके मीनिंग्स चले आ रहे हैं, उनके ऊपर और एक्सपेक्टेशन क्या होती हैं हमारी व्हेन वी रीड समथिंग. तो एक्सपेक्टेशंस मसलन आप बहुत सारे लोग जो होते हैं जब वो कोई भी ड्रामा देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी एंडिंग हैप्पी हो, और अगर वो उसके बरक्स होती है, उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरी नहीं उतरती है, तो फिर वो उसको पसंद नहीं करते बहुत सारे लोग. तो आप जो है वो असल में लोग जो हैं वो अपना ही इनर सेल्फ की सेटिस्फैक्शन चाह रहे हैं, और वो अपने मीनिंग देने की कोशिश कर रहे हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट नोबडी इज सिमिलर. Why people would like to have good endings for at least the hero? Why? क्यों वो हीरो या हेरोइन के लिए गुड एंडिंग्स चाहेंगे? क्वेश्चन. तो इन चीज़ों के जवाबात कैसे हासिल करेंगे आप? तो जवाबात हासिल करने के लिए डीकंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आप जाएंगे. तो एक्सपेक्टेशंस जो है, आप कोई भी जो राइटिंग पीस ऑफ राइटिंग पढ़ते हैं तो उसमें आपकी ज़रूर जो है वो होराइजन ऑफ एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ही चीज़ें होती हैं, कि जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपका जो अनकॉन्शियस है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, और वो आपको मीनिंग्स देने की कोशिश करता है, विच अ नॉलेजेबल रीडर मैं पहले बता चुका हूँ कि ये वर्क जो है, ये जो मैं जो लेक्चर्स देने जा रहा हूँ, ये आम लोगों के लिए नहीं है. अंडरस्टैंड्स इम्प्लिसिटली, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो वर्ड्स हैं. इम्प्लिसिट का मतलब ये होगा कि एक्सप्लिसिट का मतलब है कि एक वर्ड जो अपना मीनिंग क्लियरली डिफाइन कर दे, एक वर्ड जो कि बिल्कुल क्लियरली अपना मीनिंग डिफाइन कर दे, और उसमें भी बहुत सारे डाउट्स और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि ये टेक्स्ट जो हैं जो डीकंस्ट्रक्शन को भी डिस्कस कर रही हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो डीकंस्ट्रक्ट की जा सकती हैं, जिन पे क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं. तो इम्प्लिसिटली, और इम्प्लिसिट क्या होता है कि जो सजेस्ट करे कोई और मीनिंग, तो उसको इम्प्लिसिट काइंड ऑफ थिंग, जो कि क्लियर विजिबल ना हो, बल्कि कोई सजेस्टिव कोई और चीज़ की तरफ सजेस्ट कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि वो लिटरल मीनिंग की तरफ भी जाए. When reading the work, literary competence, with the ultimate aim of building up a kind of grammar or ground plan of the whole system of literature and its place in society. तो सोसाइटी के अंदर उसका प्लेस क्या है, और ग्रामर और ग्राउंड प्लान क्या है, सिस्टम का और लिटरेचर का ग्राउंड प्लान क्या है. मसलन शेक्सपियर जब आप देखते हैं तो वो एक ख़ास किस्म की जो है चीज़ें लिख रहा है, से फॉर एग्जांपल हायर क्लास ऑफ सोसाइटी के बारे में लिख रहा है. इसी तरह से शेक्सपियर जो है उसका जो स्ट्रक्चर है उसके ड्रामाज में, उसमें ज़्यादातर आप देखते हैं कि ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ्स को डिस्कस नहीं किया गया. क्या वहाँ पे ऑर्डिनरी लोग नहीं थे उस सोसाइटी में? क्वेश्चन. तो आप जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिर आप कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में जाएंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी जब आप देखेंगे, क्योंकि अब ये जब आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हैं, या आप जब देखते हैं मार्क्सिज्म देखते हैं, तो उसमें आपको एक बात पता लगती है कि 10% जो है दुनिया के लोग वो 90% वेल्थ को ओन करते हैं, और 90% जो बाकी दुनिया के लोग हैं वो 10% वेल्थ को ओन करते हैं. तो उससे आप अंदाज़ा लगा लें कि मेजॉरिटी जो है या ज़्यादा जो लोग हैं वो लोअर क्लासेस हैं, या मिडिल क्लासेस या लोअर मिडिल क्लासेस हैं, और बहुत कम लोग हैं जो हायर क्लासेस में हैं. तो फिर उन तमाम लोगों को निगलेक्ट क्यों किया जा रहा है पुराने वक्तों में? बिकॉज दे कैन नॉट पे, बिकॉज द राइटर हैज़ टू राइट समथिंग बिकॉज ही वांट्स मनी. वो लोगों के लिए नहीं लिख रहा है, वो पैसे के लिए लिख रहा है, पैसा कमाने के लिए लिख रहा है, इसीलिए उसको
हायर क्लास की डिपिक्शन चाहिए, लोअर क्लास की डिपिक्शन नहीं चाहिए, क्वेश्चन। तो आप क्वेश्चंस जितने रेज करेंगे, जितना क्वेश्चनिंग माइंड बनाएंगे, उतना ज़्यादा आप लोग जो है वो चीज़ों को सीखेंगे। इसी तरह शेक्सपियर की जो लैंग्वेज है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज जो कि से फॉर एग्जांपल के क्रिस्टोफर मार्लो, दोनों एक एज में लिख रहे हैं, तो मगर ये है कि एक ही लैंग्वेज है बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरे की लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। वो वर्ड्स सिमिलर हैं, दाव का कॉन्सेप्ट है, या कुछ वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर भी हैं जो कि सोसाइटी में सब बोले जा रहे होंगे, दी, दाव, THEE दी और दाव फॉर एग्जांपल। बट कई जगहों पे शेक्सपियर की जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट मिलेगा क्रिस्टोफर मार्लो की लैंग्वेज से। मार्लो जो है वो यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ है और शेक्सपियर जो है वो पढ़ा लिखा नहीं है, मगर शेक्सपियर की जो वोकैबुलरी काउंट की गई है वो कहते हैं कि 25,000 वर्ड्स के इक्वल है, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, कुछ लोग कुछ और कहते हैं, वर्ड्स की जो उसके जो काउंट किया गया। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं कि लैंग्वेज को कैसे चेंज किया जाता है या पोइट्री में कैसे चेंज किया जाता है, तो उस पर भी आप बात कर सकते हैं, जो ग्रामर का सिस्टम चल रहा है। और उसके बाद certain aspects of structuralist thought run counter to ordinary notions about the relationship between the language and the writer and the reader. Certain aspects of structuralist thought run counter to ordinary notions about the relationships between language, the writer and the reader. वो कहता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स जो हैं स्ट्रक्चरलिस्ट थॉट्स के, वो जो ऑर्डिनरी नोशंस हैं लोगों की, तो वो क्या कहते हैं कि एक रिलेशनशिप है। लोग ये समझते हैं कि एक रिलेशनशिप होता है राइटर के दरमियान में, रीडर के दरमियान में और लैंग्वेज के दरमियान में, क्योंकि लैंग्वेज जो है वो ऐसा एक मीडियम है जो कि हमें एक साथ कंबाइन रखे हुए है। मैं अपने थॉट्स लैंग्वेज के थ्रू आप तक जो है वो कन्वे कर सकता हूँ, मगर मैं थॉट्स सोचता कैसे हूँ, अगेन लैंग्वेज से सोचता हूँ। हम दोनों को वर्ड्स के मीनिंग किसने दिए, सोसाइटी ने दिए। सोसाइटी का स्ट्रक्चर पहले से डेवलप था, लैंग्वेज का स्ट्रक्चर पहले से डेवलप था। वर्ड्स डिक्शनरी में अगर आपको मिलते हैं, या आपको सोसाइटी या आपके पेरेंट्स देते हैं, या लोग देते हैं मीनिंग्स। और नए वर्ड्स जब इजाद होते हैं या नए मीनिंग्स जब इजाद होते हैं किसी वर्ड्स के, तो वो इस तरह से होते हैं कि कई टेक्स्ट्स में, कई जो बुक्स होती हैं उनमें वो वर्ड्स लिखे जाते हैं। जिस तरह हॉबिट जो वर्ड है, J.R.R. टॉलकिन के, जब आप हॉबिट का मीनिंग देखेंगे तो J.R.R. टॉलकिन की जो बुक है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या द हॉबिट, जो नॉवेल्स हैं उसके, उनके अंदर ये वर्ड मौजूद है। तो वहाँ से जो है ये वर्ड उसके जो वर्क्स हैं उससे जो है ना ये वर्ड जो है डिक्शनरी में आ गया। डीकंस्ट्रक्शन जो है वर्ड, ये डेरिडा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आया, तो ये आपको मिलेगा कि डेरिडा का वर्ड है, तो डेरिडा ने जो है इसको जो है वो काइंड ऑफ, तो कई किस्म के वर्ड्स जो याद करता है वो भी आप देखेंगे, बाद में पढ़ेंगे उसको भी। अब यहाँ पे एक तो ये कॉन्सेप्ट था कि रिलेशनशिप होता है राइटर, रीडर और लैंग्वेज के दरमियान। राइटर रीडर के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, इसको भी चैलेंज किया गया बाद में। आगे आप देखते हैं कि मैनी स्ट्रक्चरलिस्ट्स, notably French critic Roland Barthes, deny that there is any communication between author and reader. वो कहता है कि रोलैंड बार्थ्स जो है वो उनमें से एक है क्रिटिक जो कि डिनाई करता है इस बात को कि रिलेशनशिप होता है ऑथर और रीडर के दरमियान। वो कहता है कि there is no relationship between an author and a reader। किस तरह से? The persona projected by the writer is merely a literary construction। तो कि जब राइटर कुछ भी लिखता है तो लिटरेरी कंस्ट्रक्शन होती है, जिसको टेरी गिल्टन जो है अपने एक लेक्चर में आर्ग्यू करता है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जब लोग जो हैं वो कहेंगे कि हमने लिटरेचर के लोगों को क्यों इतना ज़्यादा पे किया। दे merely talk about, literary people who कहता है कि merely talk about the world which does not exist and the people who did not exist। लिटरेचर जो है वो कहता है कि उन लोगों के बारे में, टेरी गिल्टन का आर्गूमेंट है, और टेरी गिल्टन माइंडेड एक मार्क्सिस्ट है। बिकॉज हम इस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। टेरी गिल्टन के क्वेश्चन को जो है मैं, या उसके बात को मैं डिनाई इस तरह से करूँगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो सच्ची कहानियाँ लिखी जाती हैं और कहानियाँ वो भी कहलाती हैं, उनको आप सच्ची कहानियों का नाम देते हैं, उनको आप रियल स्टोरीज़ का नाम देते हैं, जो कि इस दुनिया में हो चुका होता है। तो आप एक बंदा जिसको पता नहीं है कि सच्ची कहानी है या नहीं है, तो वो कैसे डिसाइड करेगा कि सच्ची कहानी थी?
اس کا تو نہیں پتہ ہوگا, اسے تو نہیں پتہ لگے گا, مگر وہ اس کو لٹریچر کے طور پہ پڑھ سکتا ہے. آٹوبایوگرافیز لٹریچر کا پارٹ ہیں, بٹ دے آر آبویسلی اگین لائف اسٹوریز. کسی بندے کی بایوگرافیز اینڈ آٹوبایوگرافیز جو ہیں وہ کسی کی اسٹوری ہے لائف کی. تو سچی کہانیاں یا پوئٹری یا بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے. مثلاً ڈاگ کے اوپر لکھی ہے جس طرح دا اسپین آف لائف, آپ جا کے پڑھ سکتے ہیں. رابرٹ فراسٹ نے لکھی ہے دا اسپین آف لائف, 2 لائنس کی پوئم ہے. An old dog seldom barks without getting up. یا اب جو ہے ایگزیکٹ الفاظ اس کے یاد نہیں ہے بہرحال. تو وہ کہتا ہے کہ آئی کین ریمبر وین ہی واز اے پپ. تو کائنڈ آف مجھے اب ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہے, بٹ جو اس کا مین خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک بوڑھا کتا جو ہے وہ بہت مشکل سے کبھی کبھار اٹھتا ہے وداؤٹ گیٹنگ اپ. وہ کبھی کبھار بھونکتا ہے, سیلڈم بارکس, کبھی کبھار بھونکتا ہے اٹھے بغیر. اور وہ کہتا ہے مجھے یاد ہے جب وہ چھوٹا سا بچہ تھا اس کا, ڈاگ کا. تو اس پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ دا اسپین آف لائف کے فرام دا بگننگ ٹل اینڈ آپ نے اس کی لائف کا اسپین دے دیا, اس کو سب بتا دیا کہ کیا ہوتا ہے بڑھاپے میں اور جوانی میں یا بچپن میں. اب یہاں پہ ایک چیز پہ غور کریں کہ یہاں پہ کوئی کیریکٹر ایسا نہیں ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اٹ ایگزسٹس. اب ڈاگ کا کوئی اسپیسیفک ڈاگ کا بتانا ضروری نہیں ہے, لینگویج میں اس نے ایک بات کر دی. اب کون سا ڈاگ تھا اس کے مائنڈ میں, کیا تھا, وہ ایک علیحدہ کوسچنس آ جائیں گے, ان پہ الگ سے ڈبیٹ ہو سکتی ہے. تو اب کس ڈاگ کی بات کی جا رہی ہے, کون سا ڈاگ ہے. بعض ڈاگس جوانی میں مر گئے ہیں تو یہ ان ڈاگس کی بات نہیں ہے. تو بہرحال there can be so many questions you can raise, بٹ بات یہ ہے کہ جو آپ آرگیومنٹ کر رہے ہوں گے آپ کو اس آرگیومنٹ تک جو ہے وہ ریلیٹڈ, اس سے ریلیٹڈ بات کرنی ہے, آپ اسے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے ہیں. Merely a literary construction and reading itself is merely an impersonal making sense of the literary conventions within the system. وہ کہتا ہے اور ریڈنگ کیا ہے کہ آپ اپنی سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. میکنگ سینس مینس کہ آپ اپنی سینس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح سے سینس بنائیں چیزوں کی, ہم اس کے اندر سے میننگس کیسے لیں. تو ریڈنگ کیا ہے, وہ یہ ہے اکارڈنگ ٹو ہم. لٹریری کنونشنز ود ان دا سسٹم. تو لٹریری کنونشنز کیا ہیں جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں, آپ ان کو فوکس کر کے ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے کسی ٹیکسٹ کو انالائز کرتے ہیں. جس طرح ہم اگر تھیری کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انالائز کر رہے ہیں تو آبویسلی لٹریری کنسٹرکشن ہمارے مائنڈ میں, ہم اس کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انالائز کر رہے ہیں. یا ورڈز اور ان کے میننگز ہمیں سوسائٹی نے دی ہیں, ہم ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے انالائز کر رہے ہیں کسی چیز کو. اور بہت ساری جگہوں پہ انکانشیسلی وی انالائز سرٹن تھنگس جو کہ ہمارے مائنڈ میں انسٹال ہو چکی ہیں. مثلاً ایک کوے کو جب آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو وہ وائی از اٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے بیڈ سمبل, کیوں اسے بیڈ سمبل سمجھا جاتا ہے. یا چیل کو یا کوے کو بیڈ سمبل کے طور پہ کیوں لیا جاتا ہے, سانپ کو بیڈ سمبل کے طور پہ کیوں لیا جاتا ہے, جبکہ اگر کوئی مصری آدمی جو کہ سانپ کو دیوتا مانتے تھے یا ہندو جو ہیں جو سانپ کو دیوتا مانتے ہیں تو وہ اس کو بیڈ سمبلز نہیں لیں گے. مینز ہو ہیز گیون دیز سمبلز. کیا آپ کو ریلیجن نے دیے, آپ کو سوسائٹی نے دیے, یا آپ نے خود انوینٹ کر لیے. اس کے اوپر میرا لیکچر جو ہے وہ دوسرے چینل پہ موجود ہے, لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگس کے بارے میں. اور ایک بات میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں کہ اگر آپ بعض دفعہ کہتے ہیں سر چینل کا لنک دے دیں, تو مجھے اب 2-3-4 چینلز ہیں تو مجھے یہ نہیں پتہ لگتا ہے کہ کون سی بات پہ آپ کر رہے ہیں. تو آپ مجھے ریمائنڈ کروا دیا کریں کہ اس پوائنٹ پہ جو ہے آپ نے بات کی تھی, تو پھر میں وہ والا چینل کا لنک آپ کو دے دوں. تو لیونگ اور نان لیونگ تھنگس کے بارے میں میرا لیکچر موجود ہے, وہ آپ جا کے سن سکتے ہیں. تو اس پہ جو ہے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم اپنی بائسز کو, اپنی لائف کی جو پوائنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو کیسے جو ہے وہ اپنی تھنکنگ کے اندر یا اپنے میننگز کے اندر ہم ڈال دیتے ہیں. The persona projected by the writer is, اچھا ہو گیا یہ. Barthes admires the capacity of modernist literature to expose the conventions which govern literature by breaking away from them, thereby revealing also the nature of language and the conventions through which we perceive society itself. وہ کہتا ہے باتس جو ہے اس نے ماڈرنسٹ لٹریچر کو پریز کیا, ایڈمائر کیا. کیوں ایڈمائر کیا؟ کہ اس نے دکھایا کہ وہ جو نیچر آف لینگویج پرانی چلی آ رہی تھی, کنونشنز چلی آ رہی تھیں, جو ٹریڈیشنز چلے آ رہے تھے, ان سے ہٹ کے انہوں نے لکھا اور نیچر آف لینگویج کو ایکسپوز کیا انہوں نے. مثلاً ورجینیا وولف کے ورڈ جو سینٹینسز ہیں اس میں بعض جگہوں پہ ایسے ہے کہ سمپل, کیسے فار ایگزامپل کہ ایک سینٹینس جو امپیریٹیو سینٹینس ہے کہ پلے,
एक वर्ड आ जाएगा, या कई जगहों पे जो है वो उसने डिफरेंट जो है वो वे में पोर्ट्रे किया। ऑब्वियसली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस पे मेरा लेक्चर है, आप जाकर उसको सुन सकते हैं। जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक में कैसे लिखा है, तो उस पर मेरा लेक्चर मौजूद है, वो आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो उन्होंने मॉडर्निस्ट जो राइटर्स थे उन्होंने किस तरह से ट्रेडिशन से हट के लिखा और लैंग्वेज को जो है वो शो किया, एक्सपोज किया। अब एक चीज़ और मैं साथ साथ बताता चलूँ कि आप लोगों को जो है जब ये कोई भी आप राइटर पढ़ते हैं तो उसमें डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में आपको बहुत सारे राइटर्स के नाम मिल जाएंगे और उनकी बुक्स के नेम्स भी मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से ढूंढने में आसानी हो जाएगी। लाइब्रेरीज़ में जाके आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपके काम की हैं, किस किस टर्म से रिलेटेड। तो वो आप जो है उनको, अगर वो आप टर्म्स एक्सप्लोर कर रहे हैं तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। द वर्क्स ऑफ रोलैंड बार्थ्स constitutes the classics of structuralist criticism. They include Writing Degree Zero, ये उसका बुक का नाम है, 1967 में पब्लिश हुई है। As by Z जो है 1970 में पब्लिश हुई है। And The Pleasures of the Text, The Pleasure of the Text 1975 में पब्लिश हुई है। Jonathan Culler's Structuralist Poetics 1975 में is a general introduction to the subject. तो यहाँ तक ये बात एक डिक्शनरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स में कंप्लीट हुई अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म यहाँ पे डिफाइन किया है इसने मार्टिन ग्रे ने, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट डेफिनेशन या डिटेल अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। अब हम जाएंगे दूसरी डेफिनेशन ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म पे, विच इज़ ऑब्वियसली इन द अदर बुक स्ट्रक्चरलिज्म। लेट मी just if you bear with me a second while structuralism, a movement of thought in the human sciences widespread in Europe, which has affected a number of fields of knowledge and inquiry, especially philosophy, anthropology, history, sociology, and literary criticism. अब यहाँ पे काफ़ी सारी फील्ड्स में वो कहता है कि स्ट्रक्चरलिस्ट जो फ़िलासफ़ी है वो प्रिवेल कर गई। ये पहला इंट्रोडक्शन दिया उसने स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में। ब्रॉडली स्पीकिंग, इट इज़ कंसर्न्ड विद लैंग्वेज इन अ मोर जनरल सेंस, नॉट जस्ट द लैंग्वेज ऑफ अटरेंस इन स्पीच एंड राइटिंग। वो कहता है कि जनरल सेंस में जो है लैंग्वेज के साथ जो है मोस्ट जनरल सेंस में जो है वो एसोसिएटेड है, ये कंसर्न्ड है। नॉट जस्ट लैंग्वेज ऑफ अटरेंस इन स्पीच एंड राइटिंग। वो कहता है कि स्पीच और राइटिंग में जो अटरेंस, लैंग्वेज ऑफ अटरेंस है, जिस तरह से आप अटर करते हैं वर्ड्स को, सिर्फ उसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो वो कहता है कि और तरीक़ों से भी रिलेटेड है। इट इज़ कंसर्न्ड विद साइंस एंड दस विद सिग्निफिकेशन। वो कहता है कि सिग्निफायर, सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट जो है मैं स्ट्रक्चरलिज्म में, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में डिफाइन कर चुका हूँ, पहले आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। वो कहता है कि ये सिर्फ ये नहीं है कि लैंग्वेज जो अटरेंस जो आप बोल रहे हैं वो लैंग्वेज नहीं है, सिर्फ ये लैंग्वेज जो है ये साइंस, सिंबल्स, हर चीज़ की लैंग्वेज है। यानी कि आप चूटियों को अगर देखते हैं कि वनडे लेके जा रही हैं तो इट मीन्स कि बारिश होने वाली है, या कोई ना कोई जो है वहाँ पे वो जगह छोड़ रही है, या कुछ भी, उनके कई मीनिंग्स हो सकते हैं। जजीरे पे धुआं उठ रहा है तो आप देखते हैं कि वहाँ पे आग लगी हुई है, कोई बंदा वहाँ पे मौजूद है जिसको खाना बनाना आता है। आग की क्वांटिटी से उसके जो जितना भी जो स्मोक है उसके जो जितना वो स्प्रेड हुआ हुआ है या जितना वो क्वांटिटी में उठ रहा है, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे आप एस्यूम कर सकते हैं चीज़ों को, बट यू माइट बी रॉन्ग समटाइम्स। क्योंकि व्हेन आई वेंट टू तरबेला डैम वंस, तो वहाँ पे ये था कि उन्होंने एक गेट खोला हुआ था पानी का, और दूर से ऐसे लगता था कि वहाँ पे आग लगी हुई है और वाइट रंग का धुआं उठ रहा है, मगर जब करीब गए तो वो पानी के सारे वाटर वेपर्स थे, बहुत ही बारीक, जो उसके जो छोटे छोटे पानी के जो ड्रॉपलेट्स थे वो हवा में उड़ते फिर रहे थे, और उसकी वजह से वाइट रंग का जो है पूरा एटमॉस्फेयर वहाँ पे हुआ था। और दूर से बहुत जब गाड़ी पे देखते थे तो वहाँ देखते थे कि वहाँ पे जिस तरह आग लगी हुई हो। तो अगर आपको जाने का इत्तेफाक हो तरबेला डैम देखने का तो आप ये देख सकते हैं जाके। तो समटाइम्स वी कैन बी रॉन्ग, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी आर नॉट। और बहुत सारी जगहों पे हम होते भी हैं, अगर उसको कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें कि हम हैं भी सही और नहीं भी हैं रॉन्ग। कुछ मीनिंग्स में मिल जाते हैं, कुछ नहीं मिलते हैं। तो साइंस जो है वो सिर्फ यही नहीं है, वो किसी भी चीज़ का साइन हो सकता है। वो बोल्ड साइन भी हो सकता है। वो आपके फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मुझे खाने भूख लगी है तो आप इशारा कर दें, इट मीन्स दैट यू आर हंग्री।
اور سائن جو ہے وہ آپ کی شکل کے، آپ کے ایموشنز، آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی لپ موومنٹ سے بھی ہو سکتا ہے، آپ کی آنکھوں سے بھی آپ کے جو ہے میننگز یا آپ کے جو سگنیفائی کرتی ہیں کسی نہ کسی چیز کو. تو بہت سارے ویز میں آپ میننگز لے سکتے ہیں، نہ صرف انسانوں کا بلکہ جانوروں کا بھی، کہ کتا دو ملا رہا ہے یا بلی دو ملا رہی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوگا. ایک چونٹی کیسے خوش ہوتی ہے، کینٹ ڈیسائڈ، یو کینٹ آبویسلی کائنڈ آف کم ٹو نو اباؤٹ دیٹ. تو خوشی کا اگر آپ کو کہا جائے کہ خوشی کو آپ یا ہنسی کو جو ہے آپ جو ہے یا خوشی کو خاص طور پہ یا ہیپینس کو آپ ڈرا کریں تو آپ اسمائلی بنا دیں گے، بٹ دین یو ایسوشیٹ دیٹ پرٹیکولر فیلنگ ود ہیومن بینگز اونلی. آپ جانوروں کی طرف نہیں جا رہے ہیں، آپ چونٹی کی طرف. آپ ایک ہو سکتا ہے کہ امیبا جو ہے وہ کیسے خوش ہوتا ہے، ہاؤ کین یو ڈیسائڈ، ہاؤ کین یو نو دیٹ. ایک فرشتہ کیسے خوش ہوتا ہے، کیا وہ خوش ہوتا ہے، کیا اب اس میں کوشچن آ جائیں گے. خوشی جو ہے وہ ایک ایموشن ہے، تو کیا فرشتوں میں ایموشنز ہوتے ہیں؟ تو پھر آپ فرشتوں کی پوری ڈیٹیلز میں دیکھیں گے اور پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ فرشتوں کے ایموشنز ہوتے ہیں، کیونکہ ڈرنے کا ایموشن قرآن مجید میں موجود ہے کہ ڈرتے ہیں فرشتے. تو اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ایکسپلور کرنے پہ ہوتا ہے. ایکسٹینسو ریڈنگ از ریکوائرڈ ایز ویل، جس کو پہلے بات کر چکے، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک بہت جو ویل ریڈ جو پرسن ہوگا، جو ایک جو ریڈر جو ہے وہ قابل ہوگا، وہ پڑھ سکتا ہے چیزوں کو. Okay. Structuralist theory considers all conventions and codes of communication, for example, all forms of signal. اب وہ کہتا ہے تمام فارمز جو ہیں وہ سگنل کی، جو سگنلز ہوتے ہیں، جیسے اسموک ہے، فائر ہے، ٹریفک ہے، لائٹس، ٹریفک لائٹس، موس، فلیگز، جسچر، باڈی لینگویج، کلوتھس. اب جس علاقے کے کلوتھس پہنے ہوئے ہوتے ہیں آپ اس سے بھی کسی کو پلیس کر سکتے ہیں کہ فلاں علاقے سے بلانگ کرتا ہے. Artifacts, status symbols, and so on. In theory, at any rate, it has to do with any or all of the means by which human beings convey information to each other, from a railway timetable to a thumbs up sign. وہ کہتا ہے تھمز اپ سائن کا بھی میننگ ہوتا ہے، ریلوے ٹائم ٹیبل کا بھی میننگ ہوتا ہے. تو ہر چیز کا میننگ جو ہے، میننگز لینا کسی بھی چیز سے اسٹرکچرلسٹ پوائنٹ آف ویو سے اس چیز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ایوری تھنگ دین ان دا تھیوری آف اسٹرکچرلزم از دا پروڈکٹ آف سسٹم آف سگنیفیکیشن اور کوڈ. تو کہتا ہے کہ اب یہاں پہ ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ کانسیپٹ آف دا سگنیفائر. سگنیفائر وہ چیز ہوتی ہے، میں بتا چکا ہوں، جو کہ کسی چیز کو سگنیفائی کرتی ہے. The relationship between the elements of the code give it signification. تو relationship جو ہوتا ہے elements کے codes میں وہ اس کو meaning دیتا ہے. Codes are arbitrary. All signs are arbitrary. وہ کہتا ہے codes جو ہوتے ہیں وہ arbitrary ہوتے ہیں. arbitrary کا مطلب میں آپ پہلے بھی بتا چکا ہوں، ترنگ میں آ کے جب آپ کسی چیز کو meaning دے دیتے ہیں. تو آپ کسی چیز کو کوئی meaning کیوں دیتے ہیں؟ مثلا کوئی بھی چیز، جس میں بتا چکا ہوں، ڈریم سمبلز جو ہوتے ہیں اس میں آپ نے کیوں کسی چیز کو نیگیٹو شو کیا ہوا ہے اور کسی چیز کو پازیٹیو شو کیا ہوا ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ یہ چیز نیگیٹو ہے؟ کوا جو ہے اس کو نیگیٹو سمبل کیوں مانا آپ نے؟ ریون جو ہے وہ ہاربنجر آف ڈیتھ ہے، کیوں ہے؟ ریون جو ہے وہ ڈیتھ کی خبر لانے والا کیوں کنسیڈر کیا جاتا ہے ان دا ویسٹ، اور ان دی ایسٹ اس کو مہمان کے آنے کی خبر کیوں سمجھا جاتا ہے؟ دو اپوزٹ کانٹرڈکٹری سمبلز، وائی؟ تو سوسائٹی نے دیے. سوسائٹی کو کس نے دیے؟ بیکاز اٹس ڈارک، اس کا کلر ڈارک ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ میننگ دیا گیا ہے، یا کوئی اور ریزن ہے؟ تو اس کو نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ایسوشیٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ سے فار ایگزامپل اینیمل فارم میں جو ہے موزز جو اس کا دکھایا ہے، جو ریون ہے اس کا بھی نیگیٹو کیریکٹر شو کیا. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کووں کا جو کیریکٹر ہے بہت ساری جگہوں پہ، ریون ایڈگر ایلن پو کی پوئم ہے، اس کے اندر بھی اس کا کائنڈ آف کیریکٹر جو ہے دیٹ از شون ٹو بی کائنڈ آف نیگیٹو اینڈ ہاربل کائنڈ آف تھنگ. ایک ہانٹیڈ کائنڈ آف فیلنگ جو ہے وہ دے رہا ہے. وائی؟ اور اس کو ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ get thee back into the tempest and the night's Plutonian shore. تو پلوٹونین شور کون سا ہے؟ ریور سٹیکس وغیرہ جہاں سے کراس کر کے اور انڈر ورلڈ میں جایا جاتا تھا
प्लूटो की किंगडम विच इज़ द किंगडम ऑफ डार्कनेस, और या फिर उसको आप कह सकते हैं हेडीज़। हेडीज़ का ग्रीक नेम जो है वो हेडीज़ है, गॉड ऑफ द एंड वर्ल्ड, और प्लूटो जो है उसका रोमन नेम है। तो प्लूटो की किंगडम जो है दैट इज़ द एंड वर्ल्ड। तो नाइट्स प्लूटोनियन शो, रेवन बाय एडगर एलन पो। ये पोइम भी मैं पढ़ चुका हूँ अपने दूसरे चैनल पे, बहुत खूबसूरत पोइम है, आप उसको पढ़ के देखें, अगर सुनना चाहें तो सुन के देख लें, एंड यू वुड लव इट। एंड विदाउट दैम वी कैन नॉट एप्रीहेंड रियलिटी। अब यहाँ पे वो कहता है कि तमाम साइंस जो है वो आर्बिट्रेरी हैं, और हम साइंस के बगैर हम रियलिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मगर वो साथ ही साथ जब टेरी गिल्टन को आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि वो कहता है कि what do these words mean? Reality, truth, or history or anything? तो इनका मतलब क्या है? Was all talk just talk about our talk? वो कहता है कि तमाम बात सिर्फ बात थी, बात करने की हद तक। अब साथ ही साथ वो ये भी ऐड करता है कि to say that these words lack meaning or are kind of they do not give you meaning, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। उनका कुछ ना कुछ मीनिंग ज़रूर होता है, they give you part of meaning, जिसको डेरिडा जो है वो अपने अल्फाज में बयान करता है डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब क्या है? वो क्या बयान करता है कि समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स। एक तो उसका मीनिंग ये निकलता है, और दूसरा मीनिंग जो है ये भी वर्ड डेरिडा ने कॉइन किया है। डिफरेंस से उसकी स्पेलिंग चेंज है, ए से है वो एंड में जाके TAFFERENC डिफरेंस जो है वो, तो उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्पेलिंग है, इसके आप जाके चेक कर सकते हैं। तो कहता है कि समथिंग विच इज़ वन इज़ के डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स, इससे आप मीनिंग लेते हैं, जो कि स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू था। और दूसरी चीज़ क्या है? डेफरेंस, कि डेफर स्टिल टू कम, समथिंग विच इज़ पोस्टपोन्ड, जो कि अभी मीनिंग आपको कंप्लीट मीनिंग नहीं मिला, वो कहीं ना कहीं पोस्टपोन्ड है, वो बाद में मिलेगा। आपको कितने मीनिंग्स आते हैं और क्यों आते हैं? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप डिस्कस करते हैं। तो एक जगह पे डेरिडा ने अपनी बुक में लिखा है कि यू मे स्पेंड years on this sentence, तो you may spend years on this sentence, या one may spend years on this sentence, means कि एक सेंटेंस के ऊपर जो है आप सालों लगाते हैं, या आप सालों लगा देंगे उसके ऊपर सोचने के ऊपर। से फॉर एग्जांपल कि जिस तरह जेम्स जॉयस ने किताब लिखी थी यूलिसीज, और उसने कहा था कि people will go on finding meanings out of this text till doomsday। तो लोग जो है वो डूम्सडे तक इसमें से मीनिंग्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते रहेंगे। As far as literature and literary criticism are concerned, structuralism challenges the long-standing belief that a work of literature or any kind of literary text reflects given reality। अब वो कहता है कि as far as literature and literary criticism are concerned, तो literature और literary criticism जहाँ पे उनके ताल्लुक है, structuralism challenges the long-standing belief that a work of literature or any kind of literary text reflects a given reality। वो कहता है कि अब स्ट्रक्चरलिस्ट जो है इस बात पे यकीन नहीं करते, वो इस बात को चैलेंज करते हैं कि कोई रियलिटी दे रहा है, कोई वर्क जो है पीस ऑफ राइटिंग है, पीस ऑफ लिटरेचर है, वो रियलिटी दे रहा है। स्ट्रक्चरलिस्ट इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते। वो कहता है a literary text is rather constituted of other conventions and texts। तो लिटरेरी टेक्स्ट जो है वो कहता है कि वो तो बनी हुई होती है और कन्वेंशंस, जो कि कन्वेंशंस जो पहले से ट्रेडिशंस चले आ रहे हैं सोसाइटी के, सोसाइटी में जो वर्ड्स दिए, मीनिंग्स दिए, वो कहता है कि इट्स अ सेकंड हैंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड हैंड मोड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स किस तरह से लैंग्वेज सेकंड हैंड किस तरह से है, बिकॉज इट इज़ बिन यूज्ड बाय द पीपल ऑलरेडी, वी आर यूजिंग समथिंग विच इज़ सेकंड हैंड। Conventions and texts. Structuralism began in the science of linguistics, and more particularly in the work of Ferdinand de Saussure 1857 to 1913। तो इसने जो है थ्योरी पेश की थी स्ट्रक्चरलिज्म की। तो कहता है कि इसने जो है क्रिटिसिज्म को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया इसकी थ्योरी ने। Saussure made a number of important original contributions। तो कहता है उसने कई किस्म के, अब ये थोड़ा थोड़ा ब्रीफली डिफाइन कर रहा है कि क्रिटिसिज्म को, इसके जो सोसियो के जो आर्ग्यूमेंट्स थे, कि उसने
क्या क्या चीज़ें जो है कंट्रीब्यूशंस दी थी। एक क्या दिया था कि the concept of language as a science system or structure whose individual components can be understood only in relation to each other, to the system as a whole rather than to an external reality. तो कहता है कि एक तो स्ट्रक्चर, उसने कहा कि स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज का था, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज अ साइंस सिस्टम और स्ट्रक्चर, तो लैंग्वेज का सिस्टम जो है वो साइंस सिस्टम, ये आप देख चुके हैं कि लैंग्वेज सिर्फ यही नहीं है कि जो मैं बोल रहा हूँ अट्रेंसिस तक रिलेटेड नहीं है, साइंस सिस्टम है पूरा। उसका स्ट्रक्चर जो है उस इंडिविजुअल कंपोनेंट्स कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन रिलेशन टू ईच अदर एंड टू द सिस्टम एज अ होल रादर देन टू द एक्सटर्नल रियलिटी। एक्सटर्नल रियलिटी कोई नहीं है, उसकी सिस्टम के अंदर ही उसका स्ट्रक्चर मौजूद है। लैंग्वेज का स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर मौजूद है। मैं आपको बता चुका हूँ, सकवे की एग्जांपल है कि वो लैंग्वेज पहले से वो मौजूद हैं सारे स्ट्रक्चर्स। अ डिस्टिंक्शन बिटवीन लैंग एंड parole, लैंग रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज एज अ होल। तो कहता है कि एक लैंग्वेज एज अ होल जो सोसाइटी में चल रही है, फॉर एग्जाम्पल फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, एंड parole रिप्रेजेंटिंग a particular use of individual units of land। वो कहता है कि एक लैंग्वेज में इंडिविजुअल यूज़ जो है, जो एक बंदा फॉर एग्जांपल लैंग्वेज किस तरह से यूज़ कर रहा है, कैरेक्टर लैंग्वेज किस तरह से यूज़ कर रहा है, उसका डिफरेंस फ्रॉम द लैंग्वेज जो सोसाइटी के अंदर चल रही है, उससे क्या डिफरेंस है। मैं आपको बता चुका हूँ कि शेक्सपियर के जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। अब उस ज़माने के ऑर्डिनरी डिस्कोर्स तक क्या हमारी एक्सेस है? नहीं। हम सिर्फ वही करेंगे जो हमें मुख्तलिफ टेक्स्ट से लैंग्वेज मिलेंगी, हम कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में उससे जाएंगे। मसलन कुछ लोगों ने कहा कि जी बेकन ने जो है वो शेक्सपियर के प्लेज लिखे हैं, शेक्सपियर वॉज नोबडी, शेक्सपियर कोई मौजूद नहीं था कहीं पे, ये फ्रांसिस बेकन था जिसने शेक्सपियर के प्लेज लिखे थे, तो शेक्सपियर कोई बंदा नहीं है। तो किसी ने ये भी बात की, क्लेम किया। अब उस पर जब उन लोगों ने उनके राइटिंग्स को पढ़ा, उठाया, तो उन्होंने देखा कि उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। दोनों एक ही ज़माने में लिख रहे हैं मगर राइटिंग्स जो है उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, राइटिंग टेक्निक्स में, वोकैबुलरी में, स्टाइल में, हर चीज़ में। तो उस पर फिर ये ऑब्वियसली पता लग जाता है कि वो शेक्सपियर एक और बंदा है, वो बेकन नहीं है, फ्रांसिस बेकन। अब दूसरी चीज़ वो क्या कहता है, थर्ड थिंग, अ डिस्टिंक्शन बिटवीन डायक्रॉनिक एंड सिंक्रॉनिक। Diachronic denoting the historical study of the growth and development of a language, namely through philology, and synchronic denoting the study of language system at any given moment of its life। तो डायक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक स्टडीज़ की बात करता है वो सोशियो। डायक्रॉनिक जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट में, जिसमें जो इजीली डिफाइंड किया है, टेरी गल्टन ने इसको इजीली डिफाइन किया है लिटरेरी थ्योरी एंड इंट्रोडक्शन में, कि डायक्रॉनिक एंड सिंक्रॉनिक स्टडी। डायक्रॉनिक क्या है, इन इट्स हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, सिंक्रॉनिक एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, कि इसमें भी मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। आप जब किसी चीज़ को, मसलन इस पर मैं ओज़िमैंडियास जो है उस पर जब मैं लेक्चर दूंगा तो आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि डायक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक के अंदर मीनिंग्स किस तरह से चेंज होते हैं। इफ़ आई फॉरगेट दैट आफ्टर दिस डिकंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट, तो आप मुझे रिमाइंड करवा दीजिएगा कि मैंने जो है वो ओज़िमैंडियास पे लेक्चर देना है, उसका मैं क्रिटिकल एनालिसिस आपको करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हम क्या इसी के दौरान, लेक्चर के दौरान हम किसी टाइम में कर लेंगे, तो जिससे आइडिया हो जाएगा आप लोगों को। या स्ट्रक्चरलिज्म कंप्लीट करके फिर मैं ओज़िमैंडियास का जो है क्रिटिकल एनालिसिस कर लूँगा इसी लेक्चर के दौरान, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। या अगर कहें तो अलग कर देंगे, उसको अलग कर दूँगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत डिटेल से बना देंगे उस पर। उसके बाद जो है वो डायक्रॉनिक और सिंक्रॉनिक जो है वो पॉइंट्स वो देता है। और उसके बाद जो डिस्टिंक्शन बिटवीन सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, अब वो कहता है कि सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड की डिस्टिंक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बताता है कि सिग्निफायर वो चीज़ जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। इसके ऊपर मैं डिटेल से बात कर चुका हूँ, स्ट्रक्चरलिज्म के जो लेक्चर है उसमें आप जाकर सुन सकते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो। और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट, मगर साथ ही साथ जो राइटर है सोसियो, ही टॉक्स अबाउट बाइनरी अपोजिशंस, कि आप मीनिंग्स लेते हैं, डार्क का ऑपोजिट लाइट लेंगे, कि लाइट और डार्क का कॉन्सेप्ट है तो उससे आप मीनिंग्स लेंगे कि दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। लाइट है, अब मैं क्या कहता हूँ कि लाइट है, और ये इस पर मैं बता चुका हूँ कि हैवी भी हो सकता है उसका मतलब। तो आपके माइंड में पहला कौन सा आया था, डार्क आया था लाइट का ऑपोजिट, तो हैवी क्यों नहीं आया, दैट इज़ अनदर डिबेट।
تو آپ کا انکانشیس جو ہے آپ کو بہت ساری جگہوں پہ بٹرے کر دیتا ہے, بہت سی جگہوں پہ آپ کو ڈفرینٹ میننگ دے دیتا ہے, جو کہ میننگ موسٹ پرابلی ایک ریڈر یا ایک رائٹر کے مائنڈ میں نہیں ہو موسٹ پرابلی. دوسری چیز یہاں پہ جو بہت امپورٹنٹ تھی ڈسکس کرنے والی, وہ جو رولینڈ بارتھس کا جب ہم پڑھ رہے تھے کہ اس نے کہا کہ ریڈر رائٹر جو ہیں دے ڈو ناٹ کورسپونڈ ود ایچ ادر, وہ یا ریڈر رائٹر جو ان کا ریلیشن ایز سچ نہیں ہوتا ہے. اگر اس پہ بات کرتا ہے تو اگر ایک رائٹر خود لکھ کے بعد میں اسے ریڈنگ کرتا ہے تو وہ بھی تو ریڈر بن جائے گا, تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا. کوسچنز. تو یہ بہت ڈیٹیلڈ پھر ان کے اوپر انالیسز ہو سکتے ہیں. آپ اگر ان چیزوں کو اسٹرکچرلزم پوسٹ اسٹرکچرلزم کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں, ڈیکنسٹرکشن کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں, تو آپ کے لیے ریسرچ کرنا, کسی بھی چیز کے اوپر آرگیو کرنا, کوسچننگ کرنا, بہت ساری چیزیں کرنا بالکل آسان ہو جائے گا. آپ لوگوں کو کبھی بھی پرابلمز نہیں آئیں گی ان while doing criticism. اب ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ تھی کہ اس نے کہا کہ بائنری اپوزیشن سے میننگ رہتے ہیں, مگر ایک رائٹر تھا, I'll tell you the name afterwards, میں بعد میں آپ کو نام بتا دوں گا, میں نے لکھا تھا اس کا نام بھی, کہ اگر کسی چیز کی اپوزیشن یا اپوزٹ ہے ہی نہیں, سے فار ایگزامپل اس نے کہا کہ واٹر کا اپوزٹ کیا ہوگا, اپوزٹ ہے ہی نہیں جب واٹر کا, تو پھر آپ اس کا میننگ کیا, تو یہاں پہ تھیری فیل ہو جاتی ہے. کوشچن کیا بائنری اپوزیشن ہر چیز کی تو بائنری اپوزیشن نہیں ہوتی ہے, کچھ چیزوں کی اپوزٹ ہے ہی نہیں کچھ, تو ان چیزوں کو پھر کیا کریں گے آپ, تو ہر چیز کی بائنری اپوزیشنز نہیں ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں. لیوی اسٹراس اب یہ کیا کہتا ہے, he sees social structure as a kind of model and is at pains to show that the behavior patterns of kinship and the existence of institutions depend on methods of communication that are all characteristic of how human mind works. اب اس نے اپنی ٹیکسٹ میں کیا بات کی ہے, اس نے یہ شو کرنے کی کوشش کی ہے پیٹرنز آف کنشپ, کہ رشتہ داری جو ہے یا کسی بھی چیز کے جو ریلیشنز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, دی ایگزسٹنس آف انسٹیٹیوشنز ڈپینڈ آن میتھڈز آف کمیونیکیشن دیٹ آر آل کیریکٹرسٹک آف ہاؤ ہیومن مائنڈ ورکس. تو کہتا ہے جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کمیونیکیشن کے میتھڈز ہیں, لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو ہیں وہ گالیاں, آپ دیکھیں کہ گالیاں جو ہیں سے فار ایگزامپل پوری دنیا میں موجود ہیں, کوئی بھی کنٹری ایسا نہیں ہے جو گالیاں جس میں نہیں ہوں. تو ایک ایسی چیز ہے جو یونیورسل ہے. ظاہر لینگویجز ڈفرینٹ ہیں تو ان میں اپنے اپنے ورڈز جو ہیں گالیوں کے لیے یوز کیے گئے ہوں گے, بٹ دے ول بی دیئر. کوئی ایسا کنٹری نہیں ہوگا جہاں پہ گالیاں موجود نہیں ہوں گی. تو اس سے ہیومن مائنڈ کی ورکنگز تک پہنچنا, اور یہی چیز جو ہے فرائڈ بھی بات کرتا ہے. فرائڈ بھی یہ کہتا ہے کہ سلپس آف دا ٹنگ اینڈ دا جوکس بھی تمام دنیا میں موجود ہیں, سانگز بھی تمام دنیا میں موجود ہیں. تو آپ ان سے میننگز لینے کی کوشش کرتے ہیں. پھر سانگز میں جو پوئٹری چل رہی ہے آپ مختلف ایجز میں اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں سبجیکٹس جو ہیں, سبجیکٹ میٹر دیٹ ول بی ڈفرینٹ, تو اس سے بھی آپ میننگز لے سکتے ہیں. میننگز آپ ہر جگہ سے لے سکتے ہیں. مثلاً میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ کہ جارج ایلیٹ کا ایک ناول ہے مڈل مارچ, دیٹ واز پبلشڈ ان ایز فار ایز ریمبر 1862. اور اس ناول کے اندر جو ہے جارج ایلیٹ نے دکھایا ہے کہ وہاں پہ ریلوے ٹریکس بچ رہے ہیں انگلینڈ میں. تو جب آپ اب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم, میں اس پہ بات کر چکا ہوں, یہ موسٹ پرابلی میں پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو, کہ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم جس وقت وہ لکھ رہی ہے 62 میں تو پبلش ہو رہا ہے, تو اس سے پہلے لکھ رہی ہوگی, اور جو پوائنٹ اس نے جو زمانہ ڈپکٹ کیا ہے وہ اور ہے, وہ ہے 1820s کا زمانہ جب ریلوے ٹریکس بچ رہے تھے. اور یہ کہاں سے پتہ لگتا ہے, یہ آپ کو انگلینڈ کی ہسٹری سے پتہ لگتا ہے کہ انگلینڈ میں ریلوے ٹریکس جو تھے وہ تقریباً 1820s میں بچھے تھے, یا اس سے پہلے سے تھوڑے سے بچ رہے تھے. تو اس زمانے کی ڈپکشن ہے. تو یہ آپ کو برٹش راج ان انڈیا بائی ایسنبرگ, اس کی کتاب میں یہ چیز ملتی ہے کہ وہاں پہ ریلوے ٹریکس جو ہے 1870s میں انڈیا میں بچھے, اور 1820s میں جو ہے وہ انگلینڈ میں بچ چکے تھے ریلوے ٹریکس. تو یہاں پہ اس سے جو ہے آپ ایٹ اے گیون پوائنٹ ان ٹائم جو ہے وہ آپ کو بہت کچھ میننگز کنوے کر دیتا ہے اس زمانے کی سوسائٹی کی, جو کہ اس زمانے جو ہے 1820s میں کیسی سوسائٹی تھی اور 1890s میں کیسے سوسائٹی تھی. یہ آپ کو رائٹنگ سے بہت حد تک ڈیٹیلڈ پتہ لگ جاتی ہے.
ह्यूमन माइंड की वर्किंग्स तक पहुंचना। उसके बाद है his theories about myths and had considerable influence in the development of the theory of narratology for the aspect of structuralism. तो ये एक लेवी स्ट्रॉस जो है इसके बारे में भी आप बात कर सकते हैं। रोलैंड बार्थ्स जो है इस पे हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, तो अब मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा जाके। तो इसने कॉन्सेप्ट डेथ ऑफ द ऑथर जो है इसने बुक लिखी, पाथ्स एसोसिएटेड विद पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। डेथ ऑफ द ऑथर लेके ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के साथ एसोसिएट कर गया। उससे पहले जो है बार्थ्स ने एक थ्योरी पेश की से इमोटिव मीनिंग्स की बात कर रहा है वो अपने पोएटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स में जो है वो इमोटिव मीनिंग्स की बात कर रहा है। उस पर भी मैं वर्क कर रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर जो है मैं क्रिटिकली एनालाइज कर रहा हूँ उसकी उस टेक्स्ट को, पोएटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स को। तो उसमें जो है बाथ्स की जो थेरीज़ हैं ऑब्वियसली, तो मुख्तलिफ लोगों ने जो है स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर थेरीज़ दी, ग्रामर के ऊपर, सिंटैक्स के ऊपर बात कर रहा है या मुख्तलिफ चीज़ों पर। मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ बिकॉज इट विल बी टू लॉन्ग फॉर यू। A theory of structuralist poetics has been developed by Jonathan Culler in his book Structuralist Poetic Structuralism Linguistics, ये उसकी बुक का नाम है, and the Study of Literature 1975 में पब्लिश हुई है। Advances the idea that the real object of poetics is not the work itself but its intelligibility. वो कहता है कि poetics का वर्क जो है वो वर्क इटसेल्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जो समझ आने की क्वालिटी है, जो हम समझ सकते हैं वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्या चीज़ समझ सकते हैं आप उसमें से? One must attempt to explain how it is that works can be understood. वो कहता है कि ये बताना चाहिए कि क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप वर्क्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, क्या चीज़ जो है हमें वर्क्स की अंडरस्टैंडिंग में मदद देगी, इसकी थ्योरी ये है। The implicit knowledge, अब मैं implicit और explicit knowledge की बात कर चुका हूँ कि implicit वो जो कि suggestive है, कि आपको suggest किया जा रहा है कि वो कोई और चीज़ की तरफ suggest करता है। मसलन जैसा symbolic language होती है, एक वर्ड ambiguities होती हैं, paradoxes होते हैं, एक ही language में एक ही sentence में जो है contradictions आ जाती हैं कि you must give your life in order to gain it। तो आप अपनी लाइफ को दे दें हासिल करने के लिए, तो इसका क्या मतलब हुआ? कॉन्ट्रडिक्शन है देखने में, मगर इसकी मीनिंग है कि मे बी कि आप अपनी लाइफ को जो है वक्फ कर दें या अपनी लाइफ को जान दे दें, जिस तरह शहादत के रुतबे पे चले जाएँ तो आप जो है वो जन्नत में चले जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। एम्बिग्विटीज़ होती हैं कि एक ही सेंटेंस के दो मीनिंग्स होते हैं गोइंग साइड बाय साइड टुगेदर, आप कौन सा मीनिंग लेंगे और क्यों? ये हम जब ओज़िमैंडियास की डिस्कशन करेंगे तो उसमें एम्बिग्विटीज़ को भी मैं वाज़े करूँगा। मैंने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है, बहरहाल ग्रामर का जो लेक्चर है उसमें भी, और लेक्चर्स में भी मैंने किया हुआ है, तो आप वहाँ से भी जाके अगर आप बारी बारी सारे लेक्चर सुनते जाएंगे तो तमाम नॉलेज इकट्ठा होकर जब आपके माइंड में एक ओवरऑल जो उसका नॉलेज का जो पूरा सिस्टम बनेगा, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी जो हो सकता है कि यहाँ पे क्लियर नहीं हो रही हों। The implicit knowledge, the conventions that enable readers to make sense of them must be formulated. वो कहता है कि ऐसी कन्वेंशंस, ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए जिनसे रीडर्स को, कि रीडर्स कैसे चीज़ों की सेंस बनाएं, रीडर्स कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, इसके बारे में कुछ लिखा जाना चाहिए। कलर फोकसेस ऑन द रीडर रादर दैन द टेक्स्ट। तो कहता है कलर जो है वो रीडर के ऊपर फोकस कर रहा है, टेक्स्ट की तरफ फोकस नहीं कर रहा। might be related with readers response criticism या readers response theory, reception theory, suggesting that whereas it is possible to determine the rules which govern the interpretation of text, it is not possible to determine the rules which govern the composition of text. वो कहता है कि interpretation of text किस तरह से की जाए, इस पे तो rules बना दिए गए, मगर टेक्स्ट्स को किस तरह से लिखा जाना चाहिए इस पे तो कोई रूल नहीं बनाया गया। क्यों नहीं बनाया गया? देयर शुड बी सम रूल। तो इसी चीज़ पे मैं बात कर रहा हूँ। पोएटिक्स एंड लिंग्विस्टिक्स जो उसका एसे है रोलैंड बार्थ्स का, उस पे मैं यही बात साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि द इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड समथिंग or rather anything, the idea that literary competence is questionable
The idea of literary competence is questionable, but Color does not seek to identify a set of predictable rules of reading through it. वो कहता है कि रूल्स नहीं बताता है, प्रिडिक्टेबल कोई रूल्स वगैरह कुछ चीज़ नहीं करता, डिफाइन नहीं करता, डिस्क्राइब नहीं करता है इसके अंदर. The work of Raymond Jacobson, especially his two essays Linguistics and Poetics in 1960 and Two Aspects of Language 1956, provides other forms of structuralist theory. He developed the theory based on the concept of binary oppositions. So Roland Barthes ने भी binary oppositions की बात की थी. In the structure of language, he was particularly concerned with metaphor metonymy, opposition and its implication in analysis of the realism and symbolism. तो दो चीज़ें जो है इसके ऊपर इसने बात की थी, realism और symbolism की, और उसके बाद opposition and its implication in analysis of realism and symbolism. तो इन दो चीज़ों पर उसने बात की थी, particularly concerned with metaphor and metonymy. कि metaphor क्या होता है, one thing withstands to something else, and metonymy, the displacing one thing for the other. Opposition and its implication in the analysis of realism and symbolism. तो उसका जो किस चीज़ की अपोजिशन की बात कर रहा है यहाँ पे इसने डिफाइन नहीं किया. एंड इट्स इम्प्लिकेशन, अपोजिशन तो आप किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, अपोज कर सकते हैं राइटर के आर्गूमेंट्स को, राइटर के रिमार्क्स को, इन दी एनालिसिस ऑफ रियलिज्म एंड सिम्बलिज्म. तो रियलिज्म और सिम्बलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप अपोज कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. तो एनालिसिस, रियलिज्म और सिम्बलिज्म के एनालिसिस में जो है आप जब उनको एनालिसिस करने जाते हैं तो आप उसमें ऑपोजिशन ला सकते हैं कि अब सिम्बलाइज कोई चीज़ आपके लिए सिम्बलाइज कर रही है, किसी और चीज़ को हो सकता है मेरे लिए. जैसे मैं कवे की एग्जांपल दे चुका हूँ या बहुत सारी चीज़ों की. फायर जो है माइट बी अ सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड इट माइट ऑल्सो बी अ सिंबल ऑफ समथिंग गुड. दोनों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकती है. किसी जगह पे जिस तरह पारसी जो हैं वो फायर की पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, तो उनके लिए फायर जो है वो गॉड को रिप्रेजेंट कर रही है. जबकि कहीं पे आग लगी हुई है तो फायर माइट रिप्रेजेंट समथिंग बैड. तो ये चीज़ें इस तरह से मौजूद हैं. अब स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, वी कैन स्पीक ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड, अ सेंटेंस, अ पैराग्राफ, अ चैप्टर, अ बुक एंड सो फॉर्थ. तो हम किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर डिफाइन कर सकते हैं. द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले कंसिस्ट ऑफ इट्स एक्ट्स एंड सीन्स एंड देयर इंडिपेंडेंट बैलेंस. तो स्ट्रक्चर ऑफ अ प्ले क्या होता है, एक प्ले का स्ट्रक्चर क्या होता है कि जिसमें जो है एक्ट्स और सीन्स आते हैं. द नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर जो प्ले का होता है वो क्या होता है, कंप्राइजेज द इवेंट्स एंड एक्शंस विच टेक प्लेस. तो वो कहता है इवेंट्स जो होते हैं, जो उसके वाक़यात होते हैं, एक्शंस जो परफॉर्म किए जा रहे होते हैं, वो स्ट्रक्चर जो होता है वो नॉन फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है. फॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होगा, एक्ट्स और सीन्स जिस तरह से वो लिखा जा रहा है. जॉन क्रो रैंसम makes a distinctive rules that the structure of a poem is its central statement of or argument. तो जॉन क्रो रैंसम ये बात करता है, आर्ग्यू करता है कि स्ट्रक्चर जो है एक पोएम का वो उसका सेंट्रल स्टेटमेंट होगी या आर्ग्यूमेंट. जो सेंट्रल आर्ग्यूमेंट या थीम जो चल रही है वही उसका स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू John Crow Ransom. Its logical structure, while everything else, the words, their sounds, the images, the connotations suggested by the inload of words, etc., is texture or local structure. अब वो local structure की बात कर रहा है और उसके साथ साथ जो है वो बात कर रहा है सेंट्रल स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट जो है लॉजिकल स्ट्रक्चर, और दूसरी बात क्या कर रहा है वो लोकल स्ट्रक्चर. तो ये वर्ड्स वगैरह वो सारी चीज़ें जो है लोकल स्ट्रक्चर में आ जाएंगी, और साउंड्स, इमेजेस, सारी चीज़ें. तो ये साउंड्स, इमेजेस का कॉन्सेप्ट जो है इमेजरी वगैरह का, ये आपको न्यू क्रिटिसिज्म के अंदर भी मिलता है. तो न्यू क्रिटिसिज्म जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें डिटेल्स से मैं बात करूँगा. 1 घंटे का लेक्चर ये हो चुका है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है. इंशाल्लाह कल जो है इस पर मैं नेक्स्ट लेक्चर दूंगा जिसमें हम मेनली पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ आएंगे और फिर डीकंस्ट्रक्शन को हम स्टार्ट कर देंगे इंशाल्लाह. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं. अगर आप को इंटरेस्ट हो तो आप मुझे फिर बताइएगा, और डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज विल इम्प्रूव द रेटिंग ऑफ द चैनल. तो वीडियोस को लाइक दे दिया करें. और ये चैनल मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आप स्टार्टेड इट टू रेज फंड्स फॉर द पुअर पीपल. तो गरीब लोगों के फंड रेजिंग के लिए बनाया मैंने ये चैनल. तो आप लोग जो है इसमें साथ दें मेरा. एंड
اس کو سبسکرائب کریں اور لوگوں کو بھی کہیں سبسکرائب کریں. اور ایک چینل جو ہے میں نے ایکسنٹ پروننسیشن سیکھنے کے لیے بنایا ہے, تو اس کے اندر یہ ہے کہ اگر آپ جو ایکسنٹ پروننسیشن, ووکیبلری, لسننگ اسکلس, اسپوکن انگلش اور جو ہے ایکسپریشن اور ہر چیز جو ہے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے مجھ سے لنک مانگ سکتے ہیں اس کا. اور اس میں ایسوپ فیبلز, مولانا روم کی مختلف فیبلز جو ہیں اور مختلف جو ہے اسپریچول جو سٹوریز ہیں ان کے بارے میں, اور پوئمز جو ہیں بہت اچھی اچھی جو بڑے بڑے رائٹرز نے پوئمز لکھی ہیں, اور شارٹ سٹوریز ہیں میں ان کو ریڈ آؤٹ کر کے ادھر جو ہے وہ اپلوڈ کر رہا ہوں. تو ان سے آپ لوگوں کو جو ہے بہت سارا فائدہ ہوگا اگر آپ لوگ جو ہے اس چینل کو بھی ساتھ ساتھ سنتے رہیں. 10 سے 15 منٹ اگر آپ روزانہ دے دیں تو ول ہیلپ یو الاٹ. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.